rumors always comes from a man who cannot have you and a woman who's insecure of you. और किसी को काम का लालच देके पर्सनल लाइफ का इंटरेस्ट दिखाना is I think a very wrong manipulation. Experiences ना इंसान को तोड़ता है या बनाता है. तो जब ऐसा कुछ experience हो, it's a mental trauma. Many people think that this is the old story, you know. चाणक्य की बात आती कि वो मैनिपुलेशन सिखाते हैं, ऐसा नहीं है. जब मैंने भी चाणक्य पढ़ा तब मुझे समझा he has taught better things. He is not teaching you manipulation. He is teaching you the way of life. राजा बनना या राजगद्दी में बैठना is not an easy thing. Somebody who wants to be in the leading position should know कौटिल्य अर्थशास्त्र. का टीम मेंबर आपके पास आता है, आपसे मिलने के बाद अगर उसकी एनर्जी डबल नहीं हो रही काम करने की, तो आपका होना बेकार है. Correct. If you don't take care of your people, how do you expect them to take care of your business? Next 2 years LinkedIn में वीडियोस का ग्रोथ होगा. Please don't make LinkedIn a dating app. It's a professional platform. Let's deal professionally, irrespective of genders. Correct. This type of conversation will be very helpful for all our audience to Absolutely. learn. Hello everyone. Thank you so much for your love and appreciation to the Let's Talk Show. Today we have an amazing guest on Let's Talk Show, Miss Mansi Thakkar. She is a leader, she is an independent director, and she talks about Chanakya and the Chanakya Niti. So in this video, we will be going to learn about woman entrepreneurship, about leadership, about Chanakya Arthashastra or Chanakya Sutras in this video and few life examples. Thank you so much and let's go into the podcast. So hi everyone, welcome to the Let's Talk Show. And this episode is going to be very, very special with Mansi Thakkar. Mansi, I recently, came across event, where I met Mansi. और वहाँ मिलने के बाद ऐसा लगा कि we should go for the podcast. So we will be going to discuss about leadership, discuss about how the team mentoring, coaching needs to be done. A lot more think about that Chanakya or Kautilya, whatever we call it. And then most important thing that how this woman leadership and woman entrepreneurship is really required in the context of current scenario. Yes. And especially, how to build your image, the self-branding or the image, which you really would like to create. And more leaders are required in the society, community, and the bigger organization, right? So first of all, Mansi ji, thank you so much for joining for this podcast. Thank you, sir. Thank you. It's an honor to be on your show. And welcome to Let's Talk Show. So सबसे पहले तो I was just talking to Mansi कि आपका रिफ्लेक्शन आप जिसके से भी सामने बैठती हो पूरा रिफ्लेक्शन आता होगा तो थोड़ा सब लोग शाइन करने लगते हैं, isn't it? With this all the background and lightings and everything. Yeah. So my first question to you, Mansi, that you are in the leadership coaching and mentoring, and you are helping so many leaders in the community, and you are also working as an independent director for some of the organizations. Yes. What is changing in leadership, and what is the thing which was not there earlier, and which is the need of an hour today? I think the drastic change that I'm seeing these days is with the personal branding. Initially, people were focusing only on the business branding part, but nowadays the founders are focusing on personal branding. They are focusing on personal growth. They are focusing on social media. So the relevance is important, and I think being in the trend is also important, and adaptability. And I think this all comes from the growth mindset. If you don't have a growth mindset, and if you just are stuck in a fixed mindset, you won't be able to grow with the traditional practices. So in the last 3 to 4 years, what I'm drastically seeing in the change is, adaptability, social media, and most important, personal branding. And I think this will go for the next 5 to 7 years minimum. And the role of social media is, you can't avoid it. You can't ignore it. Correct. I personally believe on this principle that increase your visibility. Yes. If you increase your visibility, that will help you to build your credibility. Absolutely. And third one is, if you are able to build these two things, third thing is the byproduct of it, that is called the profitability. Yes. So be there wherever your customer, your people are there, your community people are there. Yes. Thanks for sharing this thought, Mansi. Thank you. Now coming to the topic, your own topic, that in the today's scenario, in current time, how that Chanakya or Kautilya, whatever we call, this is really relevant in today's scenario. Many people think that this is the old story, whatever we heard about the story about Chanakya and how he helped, the everything to change Yes. and to conquer the bigger issues and the challenges.
एंड ही वाज मोर पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे जो अर्थशास्त्र हैं वो Yes. ही इज नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज Yes, इनटू दैट yes, पर्टिकुलर डोमेन. yes. So please help us in understanding that how it really changes the leadership. I would just say in one line to begin with, it Mhm. is ancient wisdom for modern success. Oh. So ऐसा नहीं कि भाई पहले लिखा था तो अभी relevant नहीं है. In fact, anybody who's into leadership or who wants to build their empire should study Arthashastra. Mhm. People are aware about Chanakya Niti, but that is for, common man. Mhm. But somebody who wants to be a leader, somebody who wants to be a king or a queen, or somebody who wants to be in the leading position should know Kautilya Arthashastra, that is Chanakya Arthashastra. I've been very fortunate, sir, that I've learned Kautilya Arthashastra as a master's degree under Dr. Radhakrishna Pillai, who's the author of Corporate Chanakya and 21 best-selling books. So when I learned this, I realized that there is so much of ancient wisdom hidden that we are not aware. And we are just focusing on the modern day dynamics available, right? But again, that is taken from the ancient wisdom. I would say that it is still relevant in today's times as well. I'll give you a simple example. You see politicians, you see entrepreneurs, you see founders. Everybody is using Kautilya Arthashastra provided they have that knowledge. And when they use that, they're able to sustain their startup. A lot of startups fail in 3 months, 6 months, 8 months, right? But when you understand the basics, when your foundation is strong, at least for 3 years, you will be able to stand strong in the startup. Okay. So I would suggest that if anybody is a startup founder or somebody who's in the leadership level, they should understand ancient wisdom, particularly Chanakya Arthashastra. And it is said that before you learn Kautilya Arthashastra, you should study Ramayana. Mhm. That is the base. Okay. And then you understand the real essence of leadership, real essence of strategic thinking. How do you develop team? How do you actually, collaborate with people? How do you take decisions? And how do you control your emotions? There are n number of aspects. Yeah. In fact, I would say that Chanakya was a polymath. Mhm. And that is what he teaches, that when you are a leader, you have to be a polymath. You're not supposed to just be in one fixed mindset zone that, okay, I just know this subject, so I will just study about this. No, you should have awareness about all the domains. I'm not saying become master of all and jack of none, right? But can you just have basic knowledge of everything? And that is where Arthashastra comes in the picture. Yeah. Brilliant. Yeah. So jack of all and become a master of one. Yes. Can say perspectives. Yeah, so absolutely. Now, very important thing, when we talk about Chanakya, Yeah. how, that Chanakya, you studied in deeper aspect of, Yes. his life, Chanakya. How that, I remember, when I think about Chanakya, I remember when he was insulted in the king's, Yes. that sabha mein jab बैठे हुए थे, Yes. and then he became angry and he said कि ये जो राजा होते हैं ये हमारे हाथों में खेलते हैं, वी मेक द किंग्स, वी आर किंग मेकर्स. Yes. एंड देन उसके बाद में उन्होंने पूरा अपना नया एम्पायर खड़ा किया. सो Yes. दैट कमिटमेंट, दैट समथिंग, द स्टबर्ननेस, Yes. बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी एक Yes. लीडर के लिए टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस. Correct. शेयर समथिंग विच इज नॉट नोन कॉमनली टू द पीपल. सी पीपल जस्ट थिंक जब चाणक्य की बात आती है कि वो कूटनीति सिखाते, मैन्युपुलेशन सिखाते, ऐसा नहीं है. व्हेन यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, आइदर उसको आप इन्फ्लुएंस में यूज करो या तो आप मैन्युपुलेशन में यूज करो, ठीक है. हर एक का पॉजिटिव नेगेटिव है. अब परसेप्शन ऐसा बिल्ड हो जाता है ना ऑनलाइन में कि लोग वो चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब जब मैंने भी चाणक्य पढ़ा तब मुझे समझा कि जो परसेप्शन बिल्ड हुआ है वो रियल नहीं है. He has taught better things. He's not teaching you manipulation. He's teaching you the way of life. राजा बनना या राजगद्दी में बैठना is not an easy thing. You are always in stress. You have so many decisions to take. People look up to you. Yeah. There are people who, your families are dependent on you, right? So Chanakya is teaching you how to be what and how to live your life. इसलिए उसको कहते हैं किंग मेकर है. And coming back to your question, what people don't know is that Chanakya also supported women. ऐसा कहते हैं कि वो वुमेन के बारे में गलत बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट ही टीचेस द राजा कि जब भी एम्पायर में कोई भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले प्रोटेक्ट योर वुमेन एंड चिल्ड्रन. Okay. And he also did train women to fight in the war. So not many people know about this. तो जो हम perceptions देखते हैं ऑनलाइन सब कुछ सही नहीं होता है सर. इनफैक्ट आई वुड बिलीव इट्स नॉट कंपल्सरी दैट मेजॉरिटी विंस. और इसके तो काफी जो हम इंस्टेंसेस रामायण में भी देखते हैं. Yeah. So it's the perception. It's a wrong perception. That's it. And when you study in depth, और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, and thanks to your show, आपको पता है हम ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देखते हैं या फोटोज देखते हैं जिसमें चाणक्य का फोटो लगाते हैं. एक्चुअली वो आर्यभट्टा का फोटो लगा के बोलते हैं चाणक्य ने ये बोला. दैट्स नॉट द ट्रूथ. एंड जब हम वो देखते हैं वो वायरल होता है बिकॉज कोई मोटिवेशनल सॉन्ग वहाँ पे अटैच कर दिया है. एंड देन आई एम लाइक, अर्थशास्त्र में ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा. मतलब लोगों ने क्या किया, बिकॉज
देयर इज अ पर्सनल ब्रांड, चाणक्य इज अ पर्सनल ब्रांड, तो उनका फोटो सिमिलर फोटो लगा के खुद के थॉट्स लगा के एक मोटिवेशनल सॉन्ग लगा दिया और लोगों ने वो वायरल कर दिया। आज कितने यूट्यूब चैनल्स है, कितने इंस्टाग्राम पेजेस है जो कहते हैं कि चाणक्य नीति, और they have like millions of followers, but that is not Chanakya Niti. Again, we are not here to like offend them, but my only defense over here is पढ़ो पहले, बुक खोल के देखो क्या वो ऑथेंटिक है, क्या उसमें वो वर्स नंबर है या वो सूत्र नंबर है, या क्या चाणक्य ने सही में ये बोला है। इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, बट ये चाणक्य ने कहा, दैट इज रॉन्ग, यू आर मिसलीडिंग द पीपल, सो दैट इज नॉट इट इज। सो आई वुड सजेस्ट, जो लोगों को नहीं पता वो ये है कि चाणक्य अर्थशास्त्र अलग है, चाणक्य नीति अलग है। चाणक्य अर्थशास्त्र इज फॉर राज विद्या, चाणक्य नीति इज फॉर प्रजा विद्या। जिसको राजा बनना है उसको कौटिल्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी चाहिए, और ऑनलाइन जो सब चाणक्य के फोटो लगा के है वो रियल चाणक्य नीति नहीं है। So that is something that people don't know about. Very nice, brilliant. When we talk about, you shared about the Ramayana, yes, है ना, and रामायण भगवान राम के बारे में, yes, और इसीलिए हम लोग बार बार बात करते हैं कि राम राज्य जो था वो सबसे बेस्ट अभी तक के जो इतने भी एम्परर हुए हैं, yes, तो राम राज्य की एक परिकल्पना जो है लोग सोचते हैं कि होना चाहिए। सो वो जो राम राज्य की जो 4-5 चीज़ें थी कि वहाँ पर वो प्रजा के लिए सोचते थे, इतना बड़ा राजा जो कि इतने बड़े राज्य का एक राजकुमार हुआ करता था, नंगे पैर चलता था, लोगों के साथ में जाते थे। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, आपको क्या लगता है कि लेट्स टॉक अबाउट द मोदी जी एंड द वे ही इज रोमिंग अराउंड। आई वाज शॉक्ड टू सी कि मॉर्निंग में वो यहाँ पर होते हैं, दोपहर में कहीं और होते हैं, शाम को कहीं और होते हैं। फ्रॉम वेयर ही गेट्स द एनर्जी विद इन दिस एज, आई डू नॉट नो व्हाट इज देयर इनसाइड विच इज ड्राइविंग हिम एंड व्हाट इज दैट। एंड दूसरी चीज क्या है, उनको इतना ही इज नॉट दैट मच ग्रीडी फॉर द money for his own family or something. Yes. So share something about this, and how do you see this emperor, this king? मेरे को लगता है कि दिस इज मे बी मेरी पर्सनल फीलिंग हो सकती है कि जितनी रिस्पेक्ट आज इंडिया की वर्ल्ड में लोगों को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, बिकॉज ऑफ हिम 100%. एंड हाउ ही पोर्ट्रे द एंटायर पूरा का पूरा पैराडाइम चेंज हो गया। ऑल वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। आई वुड से ये मेरा सौभाग्य है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो 100% उनको कौटिल्य अर्थशास्त्र आता है, 100%। और उसका मैं आपको इंस्टेंस बता सकती हूँ। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी, हर एक राजा ऋषि होता है, उसमें बोलते ना फिलोसोफर भी है, वो किंग भी है। स्पिरिचुअलिटी अगर आपका बेस है ना सर, यू आर अनस्टॉपेबल। रिसेंटली जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग, हम जो प्रोग्राम में सर मिले थे, तो उसमें जो हमने सुना भी था, CEO ने जो बताया था कि आपका अगर सत्व स्ट्रांग हो तो यू आर अनस्टॉपेबल, योर स्पिरिचुअलिटी हैज टू बी स्ट्रांग, राइट। तो आप देखो आज कितनी स्पिरिचुअल जर्नी वो कर ही रहे हैं ये साल भी नहीं, इसके पहले भी वो स्पिरिचुअल थे ही। तो एक तो स्पिरिचुअलिटी, राजा ऋषि। सेकंड, उनके एडवाइजर्स बहुत पावरफुल है। चाणक्य ये कहते हैं कि आपके पास 2 एडवाइजर होने चाहिए, एक पब्लिक और एक सीक्रेट। उनको सीक्रेटली कौन एडवाइस करे वो हमें नहीं पता, जिसको हम प्रोबेबली थिंक टैंक कह सकते हैं, या काफी लोग ऐसे जो शायद लाइमलाइट में नहीं आ रहे। बट राजा के पास जब मल्टीपल एडवाइजर्स हो या सही एडवाइजर्स हो, एडवाइजर्स कैन मेक यू और ब्रेक यू। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी टीम, उनके जो अमात्य जो हम कहते हैं, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, मोस्ट पावरफुल पीपल, नॉट जस्ट बाय पावर बट बाय इंटेलिजेंस एंड बाय ह्यूमिलिटी एंड ऑल्सो बाय नॉलेज। उनको पता है लोगों के साथ रैपो बिल्ड कैसे करना है। आप किधर भी जाओ, यू विल ऑलवेज सी पीपल आर वेलकमिंग मोदी जी। व्हाई? राजा हैज टू बी अप्रोचेबल। अगर आप अप्रोचेबल नहीं हो, पीपल विल रन अवे फ्रॉम यू। रैपो बिल्डिंग सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी होता है, राइट। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखो, ही इज ऑलवेज लर्निंग। आई थिंक कुछ एक क्रिएटर्स का अवार्ड हुआ था रिसेंटली, राइट? डिड यू सी वो जेनजी के वर्ड्स यूज कर रहे थे? ही वाज ट्राइंग टू साउंड लाइक द जेनजी पीपल, राइट? ही वांट्स टू बी लाइक अदर्स, ही वांट्स टू बिल्ड रैपो विद द पीपल। राजा ऐसा ही होता है, अब जता नहीं रहे हो कि मैं राजा हूँ, बट लोगों के सबसे प्रिय। सो ये कुछ चीज़ें, और राम राज्य में भी तो ये था ना, प्रभु श्री राम सबके फेवरेट थे। यहाँ तक कि ऐसा कहते हैं कि जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो उसमें ये कहते हैं कि जब वो वनवास गए तो 14 साल की सैलरी उन्होंने एडवांस पे कर दी उनके जो भी टीम मेंबर्स थे उनको। यस, लोगों को ये बात नहीं पता। सो इफ योर पीपल आर नॉट हैप्पी and if you don't take care of your people, how would you expect them to take care of you or your business or your empire? तो उस समय में उस सोच की, उस लेवल की सोच, तभी तो राम राज्य हम कह रहे हैं ना। कौन आज आप देखो कितने कंपनीज में, अगर हम आई एम इनटू लीडरशिप कोचिंग, तो जब मैं जाती हूँ तो जब मैं पूछूं आप क्यों छोड़ रहे हो कंपनी, सैलरी टाइम पे नहीं देते। If you don't take care of your people, how do you expect them to take care of your business? Correct. Salary time पे दे दो ना, they are dependent on you. आज आप पे ट्रस्ट करके आ रहा है ये चीज, right? And again, I'm not just saying money is everything, but उनको ट्रेन करो।
आई कैन गारंटी यू सर, जितने भी मोदी जी के अमात्य है, अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोले या जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, उन सबको कहीं ना कहीं बेसिक चाणक्य नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र आता है। और ये चीज़ मैं इवन कॉर्पोरेट्स में कहती हूँ, ट्रेन योर टीम। आप सिर्फ आप खुद ट्रेनिंग लेके आते हो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि यार मेरे टीम मेंबर्स में प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो लोग आगे सोच नहीं पा रहे। आप विजनरी लीडर हो, लेकिन उनको भी तो डेवलप करो ना। यू आर हायरिंग गुड पीपल बट यू डोंट वांट टू डेवलप गुड लीडर्स। तो ये कहाँ का लीडरशिप हुआ? तो वेराज मोदी जी की टीम में आप देखो, एवरीबडी इज गेटिंग डेवलप्ड एंड दैट इज रियल चाणक्य नीति, दैट आप तो डेवलप हो ही रहे हो, लीडर्स क्रिएट लीडर्स। और ये चीज कंपनी में भी आना चाहिए, दैट लोगों को हायर कर दिया, सैलरी टाइम पे भरो, दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी नॉन नेगोशिएबल। इवन स्टार्टअप्स में तो ये कहती हूँ, अगर आपको फंडिंग उठाना भी पड़े तो भी उठाओ। अगेन माई डिस्क्लेमर इज, आपकी सैलरीज पे करने के लिए लोग खुद की सैलरी ड्रॉ करते हैं, टीम को नहीं देते, एंड देन यू फील बैड जब वो लोग बोलते हैं हम रिजाइन कर रहे हैं। डिड यू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स? और बेसिक नीड है ना, आज वो आपके अंडर क्यों काम कर रहे हैं? इज बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। एक ट्रस्ट के साथ आ रहा है, राइट? एंड सेकंड इज ट्रेनिंग, ट्रस्ट और ट्रेनिंग। अगर आपने ये बैलेंस कर दिया ना, यू विल सी अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस। वेरी नाइस, सुपर. So now you are slowly and gradually entering to our HR domain, the training, learning and development, talent management. So I always used to tell people in my current organization and outside also, wherever I go, he is not just one position, employee code. He himself or she herself is a complete, the person. Yes. So manpower people should not really look at the कि एक position खाली हो गई, इस position को भरना है. It's not about the position. A person who is coming to you, and I always used to tell all the leaders कि अगर आपकी टीम में आपका टीम मेंबर आपके पास आता है और आपके वो किसी भी कारण से आता हो और आपसे मिलने के बाद अगर उसकी एनर्जी डबल नहीं हो रही काम करने की, तो आपका होना बेकार है. करेक्ट, 100%. In one of my organization, one of my leader used to tell that to all the managers that if your people are not shining more than you, your life is ripe and rotten. करेक्ट. तो लीडर्स के लिए स्पेशली कि आपके टीम मेंबर्स को एंड एवरीथिंग कम्स अंडर दैट, यू टेक केयर ऑफ देयर वेल बीइंग, यू टेक केयर ऑफ देयर मॉनेटरी पार्ट. करेक्ट. In one of the organization, I remember when I was working in Indore, my HR head occasionally, one of the meeting, he just asked me, Pankaj, और क्या आगे का क्या प्लान है? I just said that कि I want to buy a house. अच्छा, तो कभी देखा है आपने, कुछ फाइनल किया है? I said that हाँ सर, एक फ्लैट देखा है वहाँ पर 3 BHK लेना है. हाँ. ठीक है, तो कुछ रिक्वायरमेंट तो नहीं है? मैंने सर थोड़े पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं लोन लेने का सोच रहा हूँ. कितने की ज़रूरत है? मैंने सर तकरीबन 10-12 लाख की. अच्छा, ओके, ठीक है. आप मानोगे, वो वापस गए बॉम्बे, और यहाँ बॉम्बे आने के बाद में उन्होंने मेरे अकाउंट में 3-4 दिन बाद में वो अमाउंट आ गया. एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये कैसे आया. तो उसके नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आता है कि पंकज, ये मैं फॉर्म भेज रहा हूँ, इस पर साइन करके आप भेज देना, आपको कल हमने अमाउंट. मैंने बोला बस मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं करी. नो, बोले यू शेयर्ड ना, दैट्स इनफ. करेक्ट. तो वो मैनेजर आज भी हैं. मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि सर, मैं आपको एग्जांपल हमेशा हर जगह हर सेशन में देता हूँ कि रोल ऑफ HR क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. करेक्ट. तो वो सारे पहलू लाइफ के आपके एम्प्लॉयज़ की जो लोग देख नहीं पाते हैं, क्या आप उनको देख पाते हो? तो आप उनके बारे में आप उनको टास्क देने के लिए तैयार रहते हो कि मेरा ये आज का टास्क है, एजेंडा क्या है, क्या करना है, इसको ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट कर रहे हो. बट उसके पहले आप पूछ तो लो, भाई स्टेप ठीक है, फैमिली में सब ठीक है, आपके मदर फादर ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है, सब ठीक चल रहा है लाइफ में. करेक्ट. कुछ जाता है इतना बोलने से? कुछ भी नहीं जाता. मतलब व्हाट इज दैट, यू आर लूजिंग, बट यू इम्प्रूव योर दैट दैट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. उसके बाद में आप टास्क दोगे तो आपकी चीज़ जो है वो एक्सेप्ट होगी. 100%. मैं लीडर्स को हमेशा बोलता हूँ कि जब आप सिर्फ किसी भी अपने कलीग से फर्स्ट टाइम मिलते हो, ऑलवेज टॉक अबाउट 3 पॉजिटिव इमोशंस अबाउट दैट पर्सन. अगर आपको 3 अच्छी चीज़ें उसके बारे में नहीं पता तो 2 बात कीजिए, या 2 नहीं पता तो 1 बोलिए कि यार आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है यार. आप ये जो शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन पहनते हो, नहीं मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, कैसे करते हो आप? करेक्ट. एंड दैट अलाउ दैट पर्सन टू स्पीक. करेक्ट. आप देखेंगे कि उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, वो यहाँ वहाँ देखने लगेगा और वो शेयर करेगा. उसको बोलना वंडरफुल है, कितनी अच्छी बात आपने शेयर करी. करेक्ट. चलो आज के काम की बात करते हैं. आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन, वो 100% इंक्रीज होगी. करेक्ट. एंड देन व्हाट अबाउट, उसके बाद में आप जो भी टास्क दोगे वो बड़े enthusiastically, पूरी एनर्जी के साथ में. नाउ इट्स नॉट माई, इट्स नॉट आई, इट्स वी नाउ. करेक्ट. करेक्ट. राइट. तो लोग इतना सोचते नहीं है, इतना वहां तक जाते नहीं, सबको चाहिए रिजल्ट.
and everybody is in the hurry burry to get the numbers, get the achievement and something, and where यहाँ पर सारी mistakes होती हैं कि आप हर बार आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, but do you think about that particular person? करेक्ट, नहीं नहीं, बहुत सही बात बोली आपने सर, क्योंकि समटाइम्स बोलते हैं ना कि वो पर्सनल लाइफ को लेके परेशान है एंड हमें दिखता भी है कि उसका प्रोडक्टिविटी डाउन जा रहा है, वो इंसान फोकस नहीं कर पा रहा है, बट कभी हम पूछते नहीं है कि यार आर यू गोइंग थ्रू समथिंग, इज समथिंग बॉदरिंग यू, एंड कई बार होता है ना कि पर्सनल लाइफ को लेके जब वो प्रोफेशनल लाइफ में ना ध्यान दे पाए तो हम सीधा ब्लेम करते हैं, rather than we should just think भाई और just ask कि भाई क्या हो गया है, is there something wrong with you, या कई बार just किसी को सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को एडवाइस नहीं चाहिए, they just want भाई मुझे नॉन जजमेंटली सुन लो, भाई आई एम गोइंग थ्रू दिस, एंड एक बार वो मन हल्का हो गया ना उसके बाद वो इंसान आप देखो काम करता है। Very good. लेकिन बिकॉज वी आर हैविंग आवर ओन ईगो कि भाई मैं क्यों पूछूं, ये कभी मुझे नहीं पूछता, वो जब मैं आ जाता है ना लोगों में तो वो ईगो उनको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है कि भाई एक्शन नहीं लेना है मुझे इग्नोर करना है, और वो इग्नोरेंस में इंसान वो रिलेशन बिल्ड ही नहीं कर पाता। हाँ, तो यहाँ पर यू एक्चुअली प्रिटेंड टू आस्क समथिंग, और बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, पूछते हैं, और पूछने के बाद में दे गेट बिजी इन देयर ओन मोबाइल। करेक्ट। और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बोलते हैं वो मोबाइल में बिजी हो गए एंड दे डोंट पे अटेंशन। करेक्ट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन, डोंट आस्क क्वेश्चन फॉर द सीक ऑफ आस्किंग। करेक्ट। बी देयर विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसमें सर्टेन कुछ बॉडी लैंग्वेजेस हैं, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि जब भी वो बोलना शुरू करते हैं ऑलवेज रिप्लाई देम करेक्ट, हाँ हाँ, ओहो, अच्छा, वेरी नाइस, how did it happen, and you travel with that particular person, Correct. है ना। और अगर आपने उसके साथ में वो जो ट्रेवल किया उसके when the somebody is sharing the deepest the emotion Thoughts, with you, maybe any happiest emotion or maybe any worst emotion with you, sadness or maybe something which happened with them, which they are unable to forget, वो आपको याद रखते हैं। Correct. But that's the time to build the connection, that one-on-one connection with your team member. Correct. और एक टीम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब जितने टीम मेंबर्स हैं सबको लगना चाहिए कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से समझने वाला कोई व्यक्ति है तो मेरा लीडर है। करेक्ट। तो अगर आप ये सब छोटे छोटे न्यूआंसेस का ध्यान रख पाते हो तो आप सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो। 100%। अदरवाइज इट्स रियली वेरी मच डिफिकल्ट टू रिटेन पीपल, रिटेन टैलेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिल्ड एन एम्पायर, बिकॉज वो किसी ने बोला भी है ना कि बंदा है तो धंधा है। तो आपके पास में बंदा ही नहीं है। करेक्ट। और आज भी मैं आज दोपहर में सेशन ले रहा था तो मैंने बोला कि आपकी सारी रिलेशनशिप, आपकी सारी दोस्ती, यारी, मोहब्बत, प्यार 25th से 30th के बीच में ब्रेक होने लगती है। Correct. जब बिकॉज दैट्स द टाइम यू आर मंचिंग फॉर द नंबर्स, यू आर हंटिंग फॉर द नंबर्स, यू आर क्रेविंग फॉर द नंबर्स, और उस चक्कर में आपकी सारी रिलेशनशिप जो है सब टूट जाती है। यार तो किसी काम का नहीं है, तू नालायक है, इस बार कर लेनी तो देख लेना, नहीं तो कुछ और कहीं और उस कंपनी में मैं इससे ज़्यादा। और उसके बाद वंस द क्लोजिंग गेट्स ओवर, नेक्स्ट 10 days वो उसको रिपेयर करने में लग जाते हैं। अरे यार भूल जाए यार, वो तो भाई है यार, छोटा यार, टेंशन थी यार, प्रॉब्लम थी यार, पता नहीं यार मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करता हूँ। बड़े लोगों को देखो कॉर्पोरेट से इतने फोन आ रहे थे, टेंशन में था यार, हम तो लंगोटिया दोस्ती यार हैं, चड्डी चड्डी यार हैं यार। बट लोग कभी नहीं बोलते हाउ यू मेक देम फील। तो अगर आपने लोगों को ब्रेक कर दिया ना तो इट्स नॉट इजी टू मेक देम कम बैक, तो इसीलिए बंदा है तो धंधा है, तो बंदे को आप संभाल के रखो, धंधा तो अपने आप आ जाएगा। तो धंधा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बंदा। 100%। गुड। तो वापिस आते हैं। yes. अभी आप ये बताइए कि ऐसे कौन से 2-3 सूत्रास हैं जो चाणक्य के या कौटिल्य के हैं जो सबके लिए अप्लाई होते हैं, सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए लाइफ में, जो आपको लगता है कि हमारे व्यूअर्स को या हम सबको जानना बहुत बहुत जरूरी है? सबसे पहले वन ऑफ माय फेवरेट वृद्ध संयोग, जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन विद एल्डर्स। लोगों को ना जब मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं या जब बुक्स पढ़ते हैं, उनको पता है कि हमें मेंटर्स की जरूरत है, बट मेंटर हायर नहीं करते या मेंटर्स को ढूंढते नहीं है। कितने सारे रिटायर्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको गाइडेंस देना है, उनके पास विजडम है, बट हमें लगता है कि यार वो क्या सिखाएंगे हमें। एंड लोग क्या करते पता है, मेजॉरिटी जो आपको वीडियोस में मिल जाता है ना उसी को मेंटर मान लेते हैं। अगेन नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट एक पर्सनल गाइडेंस आपके पास जब रहता है ना, फर्क बहुत पड़ता है। यू शुड हैव 2 mentors, पब्लिक मेंटर एंड 1 सीक्रेट मेंटर। पब्लिक मेंटर कोई भी आपसे छीन सकता है, सीक्रेट मेंटर कौन छीनेगा? जिसको पता ही नहीं कि आपका सीक्रेट मेंटर है। सो 1 is वृद्ध संयोग। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी एक राजा, अभी किसी को राजा बनना हो नहीं बनना उनकी पर्सनल चॉइस है, बट ये सूत्र उनको भी अप्लाई करता है। रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जो चीज आपको आती है ना वो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट चाणक्य ये कहते हैं कि जो नहीं आता है उसके बारे में सुनो, उसका रिसर्च करो, उन लोगों से मिलो और वो नॉलेज लो। तो आप सोचोगे कि वैसे राजा का टाइम एकदम बिजी होता है, कहाँ से सीखेंगे ये सब? पर चाणक्य कहते हैं नहीं, अगर आपके पास कोई कल नया आइडिया लेके आया
तो आपको तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? नहीं पता है, चलो रिजेक्ट, क्या पता कुछ बड़ा चीज हो सकता है। लेकिन अगर बेसिक्स भी अगर आपको आ जाए ना, तो यू कैन टेक गुड डिसीजंस. सो रिसर्च. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग. योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. आप किसको जानते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपको कौन जानता है वो इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे आता है आपका ह्यूमिलिटी, आपका अप्रोचेबिलिटी. कई बार लोग जाते हैं एकदम ठान से अपना बिजनेस कार्ड दे देते हैं, बाद में ना हाय हेलो, ना मैसेजेस, ना. मैंने ये भी देखा है सर कि जहाँ तक लोग सबका व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, आपको पता है सामने वाले का बर्थडे, ठीक है, आपको एक कॉल करने में कितना टाइम लगता है. आप देख रहे हो कि वो इंसान स्टेटस अपलोड कर रहा है, स्टोरी अपलोड कर रहा है, उसको सब लोग विश कर रहे हैं. कई बार जब कोई हम स्टोरी डालते तो पता है वो स्क्रीनशॉट लेके वापस रिपोस्ट करते हैं, राइट. बट हमारा ईगो होता है ना कि नहीं, हम उसको मैसेज भी ना करें और लास्ट में सिर्फ एक व्हाट्सएप पे हाय हेलो या हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं. जब रिलेशनशिप की बात आ रही है, यू आर सपोज टू बिल्ड अ बॉन्ड एंड पीपल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेक देम फील. तो अगर किसी का बर्थडे है और आपको सिर्फ एक 30 सेकेंड कॉल करना है, सिर्फ इतना बोलना है कि भाई हैप्पी बर्थडे एंड 2-3 अच्छे शब्द बोल दिए, कितना टाइम जाता है. इतने आप बिजी हो कि आप इतना बर्थडे विश नहीं कर सकते. एंड देन यू एक्सपेक्ट कि भाई जब भी मुझे जरूरत हो ना, वो इंसान मेरे लिए हाँ बोलना चाहिए या वो इंसान हाजिर होना चाहिए. आपको एक 10 या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड का बर्थडे विश करने का टाइम नहीं है. आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि वो इंसान आपके लिए खड़ा रहे? ब्रिलियंट, वेरी नाइस. एंड लोग कितने भी बिजी है, व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टोरी देखने का सबके पास टाइम है. वो आप इन्फो में देखते हो ना कि इतने सारे लोगों ने देख तो लिया, बट विशिंग. और एक आप अपलोड करो एंड नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप देखो 50-60 लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. और वो वही लोग हैं जो कभी आपका कॉल नहीं उठाते, आपका मैसेज का रिप्लाई 10-12 घंटे बाद देते, पता नहीं इतने कितने बिजी है. बट उनको टाइम है देखने का कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो. बट नेटवर्किंग जब बात करते हो ना, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक. इफ यू डोंट एड वैल्यू, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू एड वैल्यू? एंड लीडर्स हैव टू एड वैल्यू. लीडर्स कैन नॉट बी माइजर्स. मैंने काफी लीडर्स को देखा, अगर हम उसको एडवाइस के लिए पूछे, सर आपने एम्पायर कैसे बिल्ड किया, अरे ये तो ऐसे ही हो गया, पता नहीं, ये मतलब घुमा रहे बात को, समझ में आ रहा है. अगर आप 2 बातें शेयर कर दोगे क्या ही हो जाएगा. लीडर्स हैव टू क्रिएट लीडर्स, सो लीडर्स कैन नॉट बी माइजर्स इन दिस, राइट. तो नेटवर्किंग, इवन आपका जो ह्यूमिलिटी है, ऐसा कभी नहीं दिखाना है कि मैंने ये किया है, मैंने ये अचीव किया है. मैंने देखा है काफी एंटरप्रेन्योर्स, काफी फाउंडर्स, वो लोग ना पर्सनालिटी को मुद्दा ये नहीं करते, पर्स को महत्व देते हैं. अरे क्या बात है, वो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया. एक बार वो रिपीट कीजिए, बहुत अच्छा है. लोग पर्सनालिटी पे फोकस नहीं करते, पर्स पे फोकस करते हैं. कितने करोड़ का वैल्यूएशन है, कितना इसका बैंक बैलेंस, इसकी सोच कितनी है वो देखो ना. करोड़ों की सोच रहेगी ना सर, आराम से काम हो जाएगा. लेकिन सोच चीप है और बैलेंस करोड़ों में है, तो वो जीरो ही है मेरे लिए. बहुत बढ़िया. एक चीज याद आ रही है, बोलूं? जी. तो मेरे एक पुराने बॉस बोला करते थे अक्सर कि छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती. यस 100%. नाउ बहुत सारी चीजें पॉपअप हो रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं. यस. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने वर्क प्लेस पे हो, आप फैमिली में हो, आप फ्रेंड्स के पास साथ में हो, आप किसी भी सोशल फंक्शन में हो, वी आर just an experience. Yes, right? yes. So what experience you are creating for others? Say for example, let me ask you a question. मानसी जी, इतनी बिजी रहती हो, इतने सारे घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इतने सारे प्रोग्राम करती हो, कैसे कर लेती हो इतना सब? सब पैशन है, मजा आता है और फैमिली सपोर्ट है. ऑनेस्टली आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. आज मैं जो भी कुछ हूँ, मेरी दादी, पापा, मम्मी, चाचू, भाई, सबकी वजह से हूँ. एंड आई थिंक फैमिली सपोर्ट जब रहता है ना सर, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. आज अगर अक्रॉस इंडिया में काम कर रही हूँ, अक्रॉस इंडिया में सेशंस दे रही हूँ, बहुत मजा आता है. क्यों? क्योंकि आई रिमेंबर ईशान ने मुझे, अब हमारे पॉडकास्ट में ईशान ने मुझे बोला था कि मानसी, व्हाट इज ऑब्वियस टू यू इज अमेजिंग टू अदर्स. मुझे अभी भी वो लाइन बहुत अच्छे से याद है. एंड मुझे अब ये बात समझ में आ रही है कि शायद हमें लग रहा है कि यार ये तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन लोगों को उतना भी नहीं समझ में आ रहा है. एंड लोग सीखना चाह रहे हैं, बट लोग ना जजमेंटल होते कि नहीं यार, Tier 1 सिटीज में ही जाएंगे, Tier 2, Tier 3 में नहीं जाएंगे. मुझे ऐसा नहीं, मुझे सबको सिखाना है. सीखने की इच्छा है ना, सिखाना है मुझे. एंड बिफोर बीइंग अ कोच, आई वांट टू बी अ टीचर. कोच ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड टाइटल, बट जब आप एक टीचर बनते हो, यू नो, यू आर टीचिंग देम लिविंग द बेसिक्स. और वहाँ पे वो ईगो नहीं आता है कि यार मुझे सब कुछ आता है. एंड लोग सीखना चाह रहे हैं, इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव राइट पीपल. और अगर मैं अर्थशास्त्र सीखी हूँ तो मुझे पता है द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर्स. मैं ये नहीं कह रही कि सबका मेंटर बनना है, बट अगर किसी को 2 बातें सिखा दी और जब वो इंसान आके आपको बोलता है कि यू नो आपने जो सिखाया उसकी वजह से हम आगे बढ़े, हमको ये सक्सेस मिला, वो दुआ अलग है, वो फुलफिलमेंट अलग है सर. मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, वो आएगा ही आपके पास, बट यू नेवर नो कौन सी दुआएं कब आपको बचा रही है. बहुत बढ़िया. एंड पीपल नेवर फॉरगेट दैट यू हैव स्टूड बाय देम इन द सक्सेस. आपने कुछ अच्छा सिखाया और वो इंसान आगे बढ़ा है. दे एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, जो सिर्फ आपको बोलते हैं ना कि
चीज़ें आपकी गलतियां निकालते हैं या आपको पीछे खींचते हैं, बट उनको रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट तब आता है जब उनके पास राइट लोग हो एंड राइट एडवाइजर्स हो। एंड इंडिया में बहुत टैलेंट है सर, यूथ में बोलो, स्टार्टअप्स में बोलो, इवन काफ़ी लोग हैं जो अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ है, बट कभी किसी ने उनको बोला नहीं कि यार आप ये करो, मैं हूँ आपके साथ। एंड वी आर ड्रिवन बाय फियर, वी आर ड्रिवन बाय लो सेल्फ एस्टीम। लोगों के पास टैलेंट है लेकिन आगे बढ़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। और इवन जब मैं 2 दिन पहले राजकोट में थी सर, नियरली 130 वुमेन को मैंने ट्रेन किया ऑन हाउ डू यू बिल्ड योर सोशल मीडिया ऑर्गेनिकली, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। हर बात में पैसा डालने की जरूरत नहीं है, बट वो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। एंड वुमेन लीडरशिप की अगर हम बात करें तो उनका भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बट कैसे करेंगे जब तक उनको अवेयरनेस नहीं चीज़ों की। अगेन नॉट बीइंग अ जेंडर बायस थिंग, बट कोई भी चीज़ हो, जब तक आपके पास सही मेंटर्स ना हो, सही लोग ना हो ना, वो चीज़ नहीं होता। और उसके भी पहले आप में वो पैशन होना चाहिए कि यार आज अगर मैं कोई छोटे शहर में भी जाऊं तो भी मेरी एनर्जी उतनी ही हाई होगी, ना कि जब अगर मैं बॉम्बे में प्रोग्राम कर रही हूँ तो। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि यार इन लोग को क्या ही समझेगा। वो लोग को सीखना है, वो लोग अपना ईगो छोड़ के वहाँ पे आए आपके पास। तो यू शुड नॉट हैव दिस कि मैं तो बॉम्बे से हूँ तो मैं, नो, बॉम्बे से हो ठीक है, दैट्स योर गुड लक और गुड ब्लेसिंग, बट यू हैव बीन चोजन बाय द यूनिवर्स टू ट्रेन देम। और ये इंसान आज शायद छोटा है, कल कोई भी इंसान बड़ा हो सकता है ना। तो हम क्यों वो बायसनेस ला रहे हैं या हम जजमेंटल जोन से आ रहे हैं कि भाई इसको क्या सिखाएंगे, ये इंसान क्या करेगा। वो आज आम इंसान है, वो कल असाधारण बन सकता है या बन सकती है, राइट। सो एज अ टीचर, एज अ कोच, मैं यही बताऊंगी, जिसको भी आपके पास सीखना है ना, दिल खोल के सिखाओ। लीडर्स, अगेन आई वुड से कैन नॉट बी माइजर्स। क्या पता आपके एक्सपीरियंस से भी लोग सीख सकते हैं, बट आप वो डालोगे नहीं तो लोग सीखेंगे कैसे। अगर मैं लिंक्डइन की आपको सिंपल बात करूं, आज काफी फाउंडर्स है जिनको अपने बिजनेस पेजेस ग्रो करना है, बट मैं ये कहती हूँ कि आपका जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है एज एन एंटरप्रेन्योर, वो डालो, आपकी पर्सनल स्टोरीज डालो। काफी लोग ये देखते हैं यार हमने इतना पैसा कमाया, हमने ये रेवेन्यू किया, अच्छी बात है, बट अगेन लाइक आई सेड, पर्सनैलिटी वर्सेस पर्स। पर्सनैलिटी दिखानी है, पर्स दिखा के क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी, यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट जजमेंटल जोन कि भाई आप तो अलग ही लेवल के हो, हम आपको कैसे अप्रोच करें। एंड किसी को अपनी वजह से क्यों बुरा महसूस करो ना कि यार इसने इतना कमा लिया, मैं इतना नहीं कमा पा रहा हूँ। Brilliant. So money is something, you know, which is momentary kind of thing. It may come and go. Yes. But your innate things, your innate abilities and the qualities always remains with you. 100%. Another very important aspect that the way we are talking about Ramayana, Mahabharata, the way we are talking about Chanakya. Yes. Now, when I read all these international leaders, Philip Kotler, I read about 7 Habits of Effective People. I read about all these, you know, so-called, you know, the big gurus, modern gurus. Yes. I get influenced, or the current generation will get influenced, you know, but there is so much into it in our own thing, you know. I think what is, you know, missing part here. When I see strategy, I found that Chhatrapati Shivaji is the pioneer of strategy. Yes. He was one of the best strategists amongst all the international people. Whatever book you read on strategy, whatever, you know, the world so-called these people, and the best book literature ever seen is Bhagavad Gita. Yes. So much things are there beyond, you know, the limitation of a religion or other thing. If you're really keen to learn something, you need to come back to the roots and just read that, and wherever you will find that these people are writing and influencing the world based upon the principle of our own thing. Yes. Yeah. Yes. So this is something, you know, the book which is called The Alchemist. अगर आपने स्टोरी सुनी हो कि वो सब जगह घूमते हैं और कस्तूरी मृग जैसे होता है कि हमारी नाभि में सब कुछ होता है और हम दुनिया में ढूंढते खुशबू कहाँ से आ रही है, राइट? Yes. तो ये चीज अभी there is a need to build something on this and make this, you know, transferable to the next generation. जो एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है हम इंडियंस में, खासकर जितने भी हमारे पास में जो ग्रंथ हैं, अब ये जो जितने भी लिटरेचर, जैसे आप कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट है, वो इकोनॉमिस्ट है, वो पॉलिटिक्स का किंग है, वो किंग मेकर है. व्हाट एल्स यू वांट? बट यू डू नॉट get the time and you do not, you know, take that pain to go through all the sutras of Chanakya. And if you just understand and if you just interpret with your life, your instances, you will see that much more effective way we can, you know, learn from all these sutras. 100% and it's life changing, sir. 2016 में जब मैं सर से मिली, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था. 2019 में जब मैंने कोर्स में एनरोल किया, काफ़ी फ्रेंड्स मेरे पे हंसे कि यार क्या है, बिकॉज मैंने 4 लाख पे किया कोर्स के लिए. ने बोला कि चाणक्य सीखने के लिए कौन 4 लाख देता है. मैं बोला
आपको इसमें वैल्यू नहीं दिख रहा है, मुझे पता है मैं क्या सीख रही हूँ। एंड यू नो जब आप कुछ नया सीखते हो, कुछ अलग सीखते हो लोगों से, पीछे लोग खींचते हैं, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अमेरिका गए पढ़ने के लिए और मुझे कुछ अलग करना था। एंड एंशिएंट विजडम की जब आप बात कर रहे हो, इट्स 100% ट्रू, बिकॉज इट्स नॉट ओनली जस्ट इनर ट्रांसफॉर्मेशन बट इट विल कम्प्लीटली चेंज योर माइंडसेट। मैं अगर सिर्फ स्पीकर होती बिफोर ये कोर्स तो मैं आज इतने लेवल पे आगे नहीं प्रोग्रेस कर पाती। जब मैंने ये कोर्स किया, आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट। लीडरशिप इज अ माइंडसेट। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी के लोगों को पहले समझना है, उसके बाद उनसे डील करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैविंग राइट मेंटर्स विद यू। लोग अगर आपको सही एडवाइस नहीं दे रहे, यू आर मिसगाइडेड। और आज के ज़माने में ना सर, अगर कोई आपको छोटा सा भी सपोर्ट देता है, आप बह जाते हो। आपको लगता है यार यही मेरी दुनिया है, यही मेरे लिए भगवान है। आपको नहीं पता वो एडवाइस राइट है कि रॉन्ग है, राइट? तो यू चूज योर एडवाइजर्स वाइजली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीखना कभी छोड़ना नहीं है। और मैं आज तक सर, मेरे को जहाँ भी मौका मिलते हैं, हम कल भी ये बात करते, पता है कि इवन इफ आई हैव एन एक्सपीरियंस इन सर्टन थिंग्स, मैं फिर भी सीखूंगी। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग। क्या पता कोई दो नई बातें मिल जाए आपको, क्या पता कोई नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। बट अगर हम ये ईगो रखें कि यार मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं क्यों सीखूं, नो, यू हैव टू लर्न। और जब वो सरेंडरेंस आता है ना, वो बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो अपने घर के सारे विंडोज और डोर्स ओपन रखिए, अलाउ द फ्रेश एयर टू कम इन एंड देन यू कैन सी। अगर बंद रखेंगे तो उसमें जाले लग जाएंगे, उसमें आपके पास में मकड़ी और सारे की सारी चीज़ें है ना, भूत घर बन जाएगा। तो थॉट्स और हमारी लाइफ भी इसी तरीके से होती है। और जितने ज़्यादा आप टू लर्न, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन। You should. आप किसी से भी सीख सकते हैं, आप कहीं भी सीख सकते हैं, इफ यू हैव दैट माइंडसेट ऑफ लर्निंग। अदरवाइज बहुत अच्छी चीज भी आपको लगेगा कि यार ये तो किसी काम की नहीं है, तो ऐसे ही चल रही है। इनफैक्ट सर चाणक्य कहते हैं अर्थशास्त्र में कि बच्चे से भी सीखना चाहिए। एंड डिस्पाइट नन, बच्चे की भी एडवाइस काम आ सकती है। बढ़िया। हर एक इंसान से सीखो। हम क्या करते हैं, यार ये क्या सिखाएगा हमें, इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। व्हाई डू यू हैव दैट जजमेंटल एटीट्यूड? सुनो ना, क्या पता कुछ नया पर्सपेक्टिव मिले। बट अगर वो ओपन माइंडेडनेस नहीं है, अगर आप में वो एक्सेप्टेंस या अडेप्टेबिलिटी नहीं है, तो आप लोगों की बात नहीं सुनोगे। और आप तब सुनोगे जब इमरजेंसी आती है। होता है ना कंपनीज में कि जब कोई आपकी टीम आपको बोल रहा है कि सर ये प्रॉब्लम है, आप क्या बोलते हैं, अभी प्रायोरिटी नहीं, टाइम नहीं, मेरा बोर्ड मीटिंग है, मेरा फ्लाइट है, ये है, वो है। और जब कुछ बड़ा डिजास्टर हो जाए तब आप आके बोलते हो पहले क्यों नहीं बोला मुझे। वो बोल रहे थे आपको सुनने का टाइम नहीं था। यू हैड योर ओन प्रायोरिटीज, अगेन नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट फिर आपके लीडर्स साइलेंट हो जाते हैं। मैंने हाल ही में सर 2 दिन पहले एक पोस्ट लिखा था इस पे कि सो व्हेन आई एम कोचिंग लीडर्स ना, अपने प्रॉब्लम लेके सब अपने पास आते हैं। तो मुझे वही बता रहे थे कि मानसी, मैं हर बार ना, मैं इंसान का नाम नहीं लूंगी, आई वांट टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, एंड वो कंपनी का नाम भी मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हूँ, कि मानसी हर बार ना मैं बताता हूँ मेरे लीडर को, मेरे एमडी को, कि ये गलत हो रहा है, ये हमें रेक्टिफाई करना है, इसका हमें सोल्यूशन लाना है। बट एमडी क्या करते हैं ना, बाकी सबकी बात सुनते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया और उनको मैंने वही बताया कि आप मत ये करो, आप बताओ। एज एन अमात्य, जिसे हम अर्थशास्त्र में कहते हैं, अमात्य हैज टू टॉक इन द फेवर ऑफ द किंग। तो आप अमात्य हो आपके एमडी के, आप बोलो, आप चुप मत रहो। वो आपकी बात सुने ना सुने, आप अपनी ड्यूटी करो। तो बोले मानसी पर वो सुन ही नहीं रहे। मैं बोला आप मेल कर दो, आप उनको व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दो। कल जाके कुछ भी बड़ा ऊपर नीचे हो गया, इवन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि जब आपको बोलना था आपने बोला नहीं। बट उनकी भी गलती नहीं है। इफ यू ignore a person, if you despise a person, how do you expect them to open up? इसलिए चाणक्य कहते हैं किसी की बात नकारो मत, सुन तो लो एक बार। अच्छा ठीक है, आपके पास 5 मिनट नहीं है, एक शॉर्ट समरी में मूवी के ट्रेलर्स आते हैं ना, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के ट्रेलर्स, राइट? सिर्फ अपने राजा को बता दो, सर आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है, उसको अलर्ट कर दो। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम होने के बाद, सर मेरे को तो पहले से पता था ये होने वाला, तो पहले क्यों नहीं बोला? गलती दोनों तरफ से, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो काफी कंपनीज में मैं यही एडवाइस करती हूँ, आपको प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन चाहिए, पर जब प्रॉब्लम आ रहा है उसके पहले वो प्रॉब्लम को दबा दो ना। और आपके लोग बोल भी रहे हैं आपको, लेकिन आपको सुनने का टाइम नहीं है। सो एटलीस्ट हुएवर इज योर अमात्य, प्लीज लिसन टू देम, एक बार सुन लो। और अमात्य भी ऐसे चूज करो कि जो आपको सही में प्रॉब्लम बताए, आपको डराए नहीं। काफी बार लोग ना इल्यूजन क्रिएट करते प्रॉब्लम्स का, सो ऐसे अमात्य नहीं होने चाहिए। आई वुड से हनुमान जी वॉज द बेस्ट अमात्य। जब उनको भेजा था लंका, क्या उनको ये बोल के भेजा था कि आप लंका का स्टडी करके आना? नहीं, उनको क्या भेजा था टास्क कि भाई माता सीता को ढूंढ के आना है, ठीक है। बट उनकी बुद्धि देखो आप, उन्होंने क्या सोचा, यार मैं काम करता हूँ, मैं ना पूरी लंका स्टडी कर लेता हूँ और मैं ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि मेरे जो राजा है प्रभु श्री राम, जब वो लंका आएंगे तो वो प्रिपेयर्ड होंगे कि अच्छा मुझे कैसे प्रिपेयर करना है।
राइट? ये अमात्य की क्वालिटी है दैट कुछ चीजें ना राजा आपको बताएंगे नहीं, आपको खुद की बुद्धि से करना है। तो ऐसे अमात्य ढूंढो जो प्रॉब्लम को पहले से समझ ले, जो किसी की इंटेंशंस पहचान ले। वेरी नाइस, बहुत बहुत शानदार। अब आपने हनुमान जी की बात करी जी। तो एक्चुअली आप वो सारे मतलब जो सेंसिटिव चीज़ें हैं जहाँ मैं बहुत वल्नरेबल फील करता हूँ, मेरे को जी। लगता है कि नहीं, आई ऑल्सो फॉलो हनुमान जी जी। अलॉट। मेरे दिन की शुरुआत ही उनसे होती है जी। और आज से नहीं, सालों से होती है। जी। और मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरी लाइफ के जो मैंने होते हुए देखे हैं, तो ये अनुभव करने वाली चीज़ है। दिस जी। ऑल जी। थिंग्स आर वेरी एक्सपीरियंशियल। 100%। तो मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था कि व्हेन आई मेट हनुमान, ऐसा करके मेरे वाह। चैनल पे है। मैं पुणे से बॉम्बे आ रहा था, तो जो कार थी मेरी खुद की कार से आ रहा था, और मेरी कार, मेरे साथ में कोई सज्जन बैठे हुए थे। मेरी कार बीच में, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल वाला एरिया पड़ता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे ख़राब हो गई। पता नहीं कुछ पिछले पहिए में कुछ हुआ होगा, उसके पीछे वाला व्हील था, तो कार रुक गई। अब मैंने बोला क्या हुआ, तो वो व्हील मूव नहीं कर रहा था। अब बारिश का टाइम था, जैसे अभी जो बारिश का टाइम चल रहा है, तो मैं देख रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉर द हेल्प कि यार कोई हेल्प करने आ सकता है क्या। आप यकीन करोगे, विद इन 15 मिनट्स पीछे से मैंने देखा कि एक स्कूटी के ऊपर 2 लोग आ रहे हैं, और वो आकर के मेरे पास रुकते हैं और बोलते हैं सर आपकी गाड़ी का पिछला पहिया ख़राब है, हम उसको रिपेयर कर देते हैं। तो मैंने बोला भाई आपको कैसे पता कि ये ख़राब हुआ यार, कहाँ से आया आप? नहीं बोले वो पीछे हम आपके पीछे आ रहे थे, तो हमने देखा कि आपकी गाड़ी में कुछ तो भी प्रॉब्लम है और हम चेंज कर देते हैं। और वो मेरे को एक ऐसा इंट्यूशन हुआ कि, और उन्होंने चेंज किया और उसको सही करके दिया मेरे को, बढ़िया। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, अब आप जाइए। तो जो भी थोड़े बहुत पैसे थे उसको दिए। मैंने बोला ये हुआ कैसे? आप यकीन करेंगे कि आप वहाँ से आ रहे हैं इतने किलोमीटर दूर से, और कोई आपको नोटिस कर रहा है, और किस तरीके से हुआ? तो ऐसे भर भर के पूरे किस्से हैं कि वो लोग बोलते हैं कि ऐसा रामायण और महाभारत में कहा गया कि 5 जो महान जो ये लोग हैं वो अमर हैं। एक अश्वत्थामा है, एक हनुमान जी हैं। तो उनसे आप जब भी उनकी प्रेयर करते हो, जब भी आप संकट के समय में होते हो, मुश्किल के समय में होते हो, तो ये वास्तव में आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, और आपको वो फील होता है कि नहीं, कुछ था जो मेरे साथ में हुआ और वो फिर चला गया। तो ये मैं इंसिडेंट्स दूसरी बार आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ में हुई खुद की घटना है। चाहे आपको जॉब में प्रॉब्लम आए, चाहे आपको फैमिली इश्यूज हों, चाहे आपको सोशल इकोनॉमिकल कोई इशू हो, अगर आप वास्तव में उनको मानते हो और उनकी पूजा करते हो और उनको याद करते हो, तो वो मदद करने आपके आते हो, किसी भी रूप में आए, और वो आकर के चले जाते हैं। और मैं ये भी बोलती हूँ कि कई बार ना आपको डिसीजन में भी हेल्प करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तो रोज पढ़ती हूँ। और इवन स्पेसिफिकली जब मुझे कोई डिसीजंस लेने होते हैं, मैं बजरंग बाण सुन लेती हूँ। और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डिसीजंस में फ़र्क आए हैं। कई बार कुछ अलग आइडियाज़ आ जाते हैं, कई बार कुछ चीज़ें रियलाइज हो जाती है, पता नहीं क्या है, पर ये पावर है, और ये पावर में मैं भी मानती हूँ। एंड लोग जब कहते हैं ना कि यार बजरंग बाण तांत्रिक मंत्र है, होगा, लेकिन आपका पर्पस क्या है? आप हेल्प मांग रहे हो ना भगवान से, और दयालु है भगवान, क्यों नहीं हेल्प करेंगे? पर इट्स जस्ट दैट कि इंटेंशंस क्या होता है। लोगों के इंटेंशंस भी कई बार गलत होता है जब प्रार्थना करते हैं। हम वो सब ये नहीं करते। हमारा बस ये कि भाई आप हेल्प करो। आपने जिस तरीके से एक अच्छे अमात्य बने, आप तो प्रभु है फिर भी अमात्य है, लेकिन आप देखो कितनी ह्यूमिलिटी थी हनुमान जी में भी। कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि यार मेरी वजह से ये हुआ, या मैं लंका जाके आया। ये एटीट्यूड लोगों में बहुत आता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैं ये डील लेके आया, मैंने ये कॉन्टैक्ट लाया, और फिर लोग कहते हैं कि यार हमसे लोग ना दे हैव जेलसी। नहीं, आपने उनको छोटा महसूस करवाया ना, इसलिए जेलसी है, इसलिए वो इनसिक्योरिटी है। और एक हम ये भी कहते हैं साइकोलॉजी में कि किसी की अगर इंटेंशंस पहचानने हो ना, तो आप जब वो इंसान किसी को अप्रिशिएट करे तभी देखो। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या वो अप्रिसिएशन खुद के लिए ले रहे हैं या अपने टीम को भी क्रेडिट दे रहे हैं कि यार सर ठीक है, एज अ मैनेजर आपने मुझे अप्रिशिएट किया, लेकिन इसके पीछे ना मेरी टीम है। तो क्रेडिट किसको दिया जा रहा है वो आप देखो। और लीडरशिप में तो हम ये सीखते ही है कि यू टेक द ब्लेम बट यू गिव क्रेडिट। आप किसी को ब्लेम मत करो, क्रिटिसाइज पब्लिकली मत करो, प्राइवेटली करो। तो ये थियोरेटिकली अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली लोग अप्लाई नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली वो मौका ढूंढते हैं सबके सामने कैसे रिप्रीमांड करना है किसी को। और क्या मजा आता है मुझे नहीं पता किसी को नीचा दिखाने में। इट्स मे बी हम ये नहीं समझ पा रहे कि किसी को नीचा दिखाना भी एक बद्दुआ है।
आप किसी को दिल दुखा रहे हो, राइट? हम डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि यार दवा नहीं, अब दुआ बचाएगी आपको, तो क्यों किसी का दिल दुखाना? और किसी का दिल दुखा के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप प्रॉफिट करोगे आपकी कंपनी में, कैसे पॉसिबल है पॉसिबल ये चीज़? जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप लीडरशिप की बात करो, नेतृत्व की बात करो, रामायण से आप पढ़ाई करो, आप चाणक्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करो, लेकिन वो लेसन्स अप्लाई करो आपकी लाइफ में। एंड नो मैटर कौन से भी आप लेवल में क्यों ना हो, यू शुड नॉट लीव योर ह्यूमिलिटी। पीपल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेक देम फील। छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, वो डेजिग्नेशन से क्या फर्क पड़ता है? आखिर में इंसान तो है ना पहले वो, तो उसको इंसान की नज़र से देख के ट्रीट करो। पर हम ना जजमेंटल हो जाते हैं, अरे ये तो मैनेजर लेवल है, अरे ये तो पियून लेवल है, अरे ये तो ये लेवल का है। मैंने देखा है काफ़ी कंपनीज में सर, पियून को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, लेवल के हिसाब से लोग आते हैं। होगा हायरार्की, आई एम नॉट सेइंग नो, डेजिग्नेशंस होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट कोई आपसे अगर बात भी ना कर पाए तो कैसे आप अपना टीम ग्रो कर रहे हो? मुझे वो लॉजिक अब तक समझ में नहीं आता है। इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार बात बताई आपने। जो लाइफ है ना एक बहुत बड़े कैनवास पे है, और मैं इसको अक्सर बोलता हूँ, इस तरीके से लेके चलता हूँ कि हम सब लोग एक सफ़र पे जा रहे हैं। Yes. जैसे फॉर एग्जांपल हम बम्बई से, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन बताइए इंडिया में कोई भी। कोयम्बटूर। तो हम बम्बई से कोयम्बटूर जा रहे हैं। Yes. तो उस बस में हमारे साथ में कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं, Yes. जो यात्रा कर रहे हैं साथ में। Yes. और बीच में हम सब लोगों को भूख लगती है, तो हम सब लोग एक छोटा सा हिल स्टेशन जैसा कुछ एरिया पड़ता है, वहाँ पर रुक करके एक छोटा रेस्टोरेंट है, चाय मिलती है वहाँ पर, छोटे बहुत समोसे, कचौरी वगैरह ये सब मिलता है, इडली वड़ा मिलता है। तो हम सब लोग वहाँ उतरे हैं। हाँ. और जब वो वहाँ पर उतरे हैं तो वहाँ हमने देखा कि उस जगह पर और भी लोग बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ. अब वहाँ पर लोग बैठने की कोशिश करते हैं, तो वो एक चेयर है वहाँ पर, उसके ऊपर दो लोग एक साथ आ गए बैठने के लिए। वहाँ ये भी हो सकता है कि वो चेयर के लिए दोनों लोग लड़ाई करें कि पहले मैं आया, या ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे को ऑफर करने, नहीं आप बैठिए। करेक्ट है ना? कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप उसको बोले नहीं आप बैठिए सर, आप बैठ सकते हैं अंकल यहाँ पर, और वो अंकल बोले नहीं बेटा मैं तो ठीक हूँ, बहुत देर से बैठा था, आप बैठो। दूसरी चीज़, वो जो काउंटर है जहाँ पर बिलिंग हो रही है, वहाँ पर लाइन लगी हुई है, और वहाँ पर भी लोग झगड़ा कर रहे हैं, पहले मेरा नंबर, मेरी बस छूट जाएगी, मेरी कार्ड। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बोले नहीं आप ले लीजिए, मैं 2 मिनट बाद में ले लूँगा। है ना? करेक्ट। ये एक्सपीरियंस जो आपने क्रिएट किया, और आप बैठ करके फिर उस कार में वापस आते हैं, अपनी कैब में आते हैं, और वापस आप कोयम्बटूर के लिए चल देते हैं। तो वो जो छोटा सा समय आपने वहाँ बिताया, जिंदगी इस तरीके से होती है। करेक्ट। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वर्क प्लेस पे जितने लोग हैं, वो उस छोटे से दुकान पे जैसे आप रुके हैं, आप वहाँ उनको किस तरीके के एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं? करेक्ट, 100%। आप अच्छे एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर, या आप वर्स्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर, वो क्या चीज़ें हैं? तो अब आप दूसरी बात के ऊपर आते हैं। अभी बहुत सारे जो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके ऊपर कुछ बात करते हैं। आप खुद भी एक वुमन एंटरप्रेन्योर हैं, और अभी इंडिया में हमको बहुत ज़रूरत है। अभी हमने देखा कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर। शेयर सम योर थॉट्स ऑन दिस, थ्रो सम लाइट्स ऑन दिस। सर आपने बहुत सही बात बोली कि वुमेन डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले ना वुमेन को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, और उसको ग्रैब करने के लिए सबसे पहले आपको जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कोर्सेज हैं वो कर लेने चाहिए। डजेंट मैटर आपका क्या एक्सपीरियंस है, बट बेसिक सीखने में कोई शर्म नहीं। 2 दिन का कोर्स होता है, 3 दिन का कोर्स होता है, सीख लो ना। क्या पता कोई 2 नई बातें समझ में आए, या कोई नई बातें आपको सीखने में मिले, राइट? बेस क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, सीखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेट ट्रेन्ड अंडर पीपल। कई बार मैंने देखा है कि वुमेन को ना लो सेल्फ एस्टीम होता है कि यार मैं कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनूं, मैं डिसीजंस में कैसे आऊँ, मेरे को सिर्फ साइनिंग पर्पस लिए रखना है। नहीं, मैं बहुत क्लियर थी सर कि जब भी मैं कोई भी बोर्ड में आऊँगी, मुझे सिर्फ साइनिंग पर्पस के लिए नहीं रहना है। आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू। अब कोई भी अगर फील्ड में आप जाते हो ना सर, तो मे बी वो फील्ड का आपको नॉलेज हो या ना हो, बट कैन यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ? तो मैंने क्या किया, ट्रेनिंग वर्टिकल, नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग। मैंने सोचा कि मैं उस चीज़ में आगे जाऊंगी, लीडरशिप ट्रेनिंग को लेके है, या कौटिल्य अर्थशास्त्र को लेके है, या स्किल डेवलपमेंट को लेके है। बट आई अंडरस्टूड कि नॉट एवरीबडी वांट्स टू लर्न लीडरशिप, सबको लीडर नहीं बनना है। तो मैं और क्या कर सकती हूँ, हाउ कैन आई ऐड वैल्यू? तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया, ये सब बोर्ड मेंबर्स को नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि मैं उस चीज़ पे मास्टरी ले लूँ। तो लास्ट 2 साल से ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया कैसे ग्रो करना है, स्पेसिफिकली लिंक्डइन, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, ये 2 अभी मैं वर्क कर रही हूँ जिसपे। यूट्यूब अभी मैं सीख रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि हाउ कैन आई डिफरेंशिएट माई सेल्फ, तो वो चीज़ पे और रेलिवेंट रहना। बिकॉज अगर आप वैल्यू एड नहीं करोगे, यू विल ओनली बी देयर फॉर साइनिंग पर्पस, एंड दैट इज नॉट रिस्पेक्टेड। मे बी आपको डिविडेंड्स मिल जाएंगे, मे बी आपको आपकी बोर्ड सेटिंग फी मिल जाएगी, बट
आपके मन को आप पूछो, इज दैट व्हाट यू वांट, और डू यू रियली वांट टू बी इन द पावर पोजीशन के यस, जब मीटिंग हो रही है आप भी आपके पर्सपेक्टिव रख सकते हो, बट इफ यू आर नॉट रेलेवेंट, इफ यू आर नॉट डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ, यू विल बी रिप्लेसेबल इजिली. एंड सोशल मीडिया कौन से कंपनी को आज नहीं चाहिए मुझे आप बताइए. एवरीबडी वांट्स सोशल मीडिया, राइट? लिंक्डइन सबको नहीं आता है. दिस इज वेयर माय वर्क कम्स इन द पिक्चर. अच्छा, काफी बार ना किसी को अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है. आई टीच देम पब्लिक स्पीकिंग. As a woman director, you're supposed to add value. You're supposed to bring in the revenue, but ethically and morally. तो अगर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ओके. सोशल मीडिया भी नहीं चाहिए, ओके. पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज आप की नोट दो तो यू गेट मोर विजिबिलिटी. हमने विजिबिलिटी की स्टार्टिंग में बात की आज के पॉडकास्ट में. It is not about luck, it is about strategy. Visibility cannot be luck. You have to have the strategy in place. अगर आप अलग अलग की नोट्स में जाते हो, अगर आप पैनल डिस्कशन में जाते हो, it is visibility. सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, हम बैंगलोर के इवेंट में मिले. आई वॉज द स्पीकर वो इवेंट में. सेशन के बाद आपसे मुलाकात हुई, आज ये पॉडकास्ट हो रहा है. सो कहने का मतलब ये कि यू डोंट नो व्हाट लीड्स टू व्हाट. एंड दिल खोल के आंसर्स दो, दिल खोल के एक्सपीरियंसेस शेयर करो. आप ये सोचोगे ये तो मैं ना पेड सेशन में ही बताऊंगी, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आने वाली. 80-20 रूल, 80% फ्री में दे दो, 20% का चार्ज करो. वेरी नाइस. बट जो चीज फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि लोग उसके लिए आपको पे करें? एक्सपीरियंस शेयर करो, आपके लर्निंग्स, आपके पर्सपेक्टिव शेयर करो. एंड अब तो सर नेक्स्ट 2-3 years पॉडकास्ट, पर्सनल ब्रांडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये आगे बढ़ने ही वाला है. और अगर अब फाउंडर्स ने ये चीज नहीं उठाई एज अ अपॉर्चुनिटी, तो पीछे रह जाएंगे. एंड ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस. कंपनीज ये सोचती हैं यार ये तो एक्सपेंस है, और हम क्यों खर्चा करें एम्प्लॉयज के लिए? भाई आपके टीम मेंबर्स है ना, आप सीखने के लिए खर्चा कर रहे हो आपके खुद के लिए, तो उनको क्यों नहीं? एंड पर्सनल ग्रोथ लीड्स टू प्रोफेशनल ग्रोथ. प्रॉब्लम कहाँ है पता है? प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ा और पीछे चलते हैं. यस. अभी नाउ इफ द CEO ऑफ माय कंपनी और मे बी XYZ कंपनी हैज नॉट सीन द इन्फ्लुएंस एंड द मैजिक ऑफ ट्रेनिंग, और वो हमेशा नंबर मंचिंग करके इधर उधर से अलग अलग तरीके से बिजनेस लेकर के आते हैं, तो वो कभी उसको फेथ आएगा ही नहीं. करेक्ट. क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, आपने कभी देखा ही नहीं है कि वास्तव में ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, टीचिंग ये चीजें काम करती हैं. करेक्ट. तो यहाँ प्रॉब्लम है. और अगर किसी ने पास्ट में ट्रेनिंग को इन्फ्लुएंस देखा है, कुछ चीज़ें उसने इम्प्लीमेंट करी हैं और उसके रिजल्ट या फ्रूट्स देखे हैं, तो वो हमेशा प्रो ट्रेनिंग होगा. करेक्ट. तो जितने भी लीडर्स इस पॉडकास्ट को सुनेंगे या सुनने वाले हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी टीम में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये सारे फंक्शंस हैं और आप उनका बेनिफिट नहीं ले रहे हो और आपको नहीं पता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आपका ड्रॉबैक है. आप आंख पे पट्टी बांध के बैठे हो, आपको दिख नहीं रहा है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं, रोज़ लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपके पास में सॉल्यूशन होते हुए आप उसको नहीं दे पा रहे हो. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक तो पीपल अंडर एस्टिमेट बाय द एज. मेरे साथ ये बहुत होता है. एंड अगेन नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आई फील जब तक आप एक अपॉर्चुनिटी दोगे नहीं, आपको समझेगा कैसे? तो ये रीजन रहते, चलो एज का जस्टिफाई हो गया, आप बोलेंगे दूसरा क्राइटेरिया रहता है हमारा खराब एक्सपीरियंस रहा. सब सेम एक्सपीरियंस कैसे देंगे आपको, मुझे आप बताओ. आपका एक एक्सपीरियंस खराब हुआ डज नॉट मीन कि सारे ट्रेनर्स खराब है. बट एक बोलते ना, एक ही वो क्राउड में आ जाता है फिर कि ये भी ऐसे ही होंगे. विदाउट एक्सपीरियंस कैसे अपने जजमेंट पे आ गए आप, कैसे कंक्लूजन पे आप आ गए? एंड देन इसलिए सोशल प्रूफ देना पड़ता है कि भाई देखो इतने लोगों को ट्रेन किया है, इतने टेस्टिमोनियल्स दिए, इतना सोशल प्रूफ. अगेन नो प्रॉब्लम. पर यही चीज में प्रॉब्लम होता है कि लोगों को लगता है शो ऑफ हो रहा है और यहाँ पे हमारे लिए वो सोशल प्रूफ है. तो यहाँ पे वो भी एक लड़ाई हो गई है कि मे बी लोगों को लगेगा कि यार शो ऑफ कर रही है. शो ऑफ नहीं कर रहे, सोशल प्रूफ दे रहे. बिकॉज एक तो एज से अंडर एस्टिमेट किया जाता है, एक्सपीरियंस से अंडर एस्टिमेट किया जाता है. उनका कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो लगेगा ये भी ऐसे ही होंगे. नहीं. एंड विदाउट ट्रेनिंग कंपनी आगे बढ़ ही नहीं सकती. कंटिन्यूस ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए. और ये अर्थशास्त्र में भी लिखा है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंश्योर्स अ ट्रेन्ड इंटेलेक्ट. फ्रॉम इंटेलेक्ट कम्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिजल्ट्स सेल्फ पोजेशन. सेल्फ मास्टरी चाहिए, सक्सेस कंटिन्यूस चाहिए. कंटिन्यूसली ट्रेन करो अपने आप को. एंड दिस इज बियॉन्ड योर एजुकेशन, बियॉन्ड योर फॉर्मल डिग्रीज. इंटरेस्टिंग. तो आप एज अ फाउंडर ट्रेन हो गए, एंड देन आपको चाहिए भाई हम भी 10x सोच रखे, हम भी 10x ग्रोथ करें. तो आपकी टीम ही ट्रेंड नहीं है, तो आप कैसे ग्रो करोगे? और फिर हम कंप्लेन करते हमारी टीम हमारे विजन से अलाइंड नहीं है. कैसे होगी? आपने विजन बता दिया, क्या क्या आपने वो प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व किया? नहीं ना. फिर
एंड सर टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, दोनों ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, दोनों का बैलेंस चाहिए. एंड लीडरशिप ही नहीं, आप सॉफ्ट स्किल्स सीखो, पब्लिक स्पीकिंग सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो, कितने ऑप्शन है सीखने के लिए. और आप देख लो कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर पीपल दे विल इन्वेस्ट बैक टू यू, क्योंकि शायद उसके पास वो उतनी कैपेसिटी नहीं है. दे हैव देयर EMIs, दे हैव देयर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कहाँ से सीखे. लेकिन अगर आपने वो टाइम निकाल के हफ्ते का एक, या मैं तो बोलूँ महीने का एक ट्रेनिंग अलग अलग स्पीकर्स को बुला के करो, क्या प्रॉब्लम है. बट लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रेनिंग में सबसे सस्ता ट्रेनर लेके आए है ना, कि यार ये वो 50,000 का सेशन करता है, आप 5,000 रुपए में कर देगा, ये कर तो रेडी है ना, इससे करवा लेते हैं. हाँ. जैसे आपने बोला कि ट्रेनिंग इज अ इन्वेस्टमेंट, तो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट जब तक आप चेंज नहीं करोगे आपके लोग आगे नहीं बढ़ सकते, है ना. लीडर्स को ये समझना पड़ेगा, स्पेशली जो CXOs हैं उनको ये चीज़ समझना पड़ेगी. करेक्ट. और आप बार बार उंगली मत उठाओ कि यार ये तो इतना अच्छा नहीं हुआ वो. अब ये प्रॉब्लम क्या है कि जजमेंट देने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, ओपिनियन मेकर्स बहुत होते हैं, जो कि बेसिकली वहाँ हमको रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए. आप करके देखो, थोड़ा समय उनके साथ स्पेंड करके देखो, कंटिन्यूएशन करके देखो, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट. फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन. ऑफसाइट के लिए पैसे हैं, गिफ्ट्स देने के लिए पैसे हैं, ठीक है, बट ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं है. तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है. एंड ट्रेनिंग में भी वो लोग प्रोफाइल्स अलग अलग मंगवाएंगे, जो प्राइस में नेगोशिएशन होता है वो अलग होता है. तो देन यू ऑल्सो फील अंडर वैल्यूड कि यार क्या है ये. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ ट्रेनर्स जिनको एक मौका चाहिए वो हाँ बोल देते हैं. अगेन उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, but then I feel that if you don't value yourself, even those people won't value you. And when you know what value and result you will bring to the table, of course you can charge. और जब तक उनको वो अनुभव नहीं होगा ना, तब तक उनके लिए ये एक एक्सपेंस ही होगा. तो एक्सपीरियंस से आप उसका एक्सेलेंस में लेके आओ, एंड लेट देम एक्सपीरियंस वन सेशन. बट द प्रॉब्लम इज ट्रेनर्स आगे आना चाहते नहीं है, सेम कॉपी पेस्टेड टॉपिक्स लेके आते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे डोंट वांट टू कस्टमाइज इट. कस्टमाइजेशन दे दो ट्रेनिंग में, रेलेवेंट टॉपिक्स दो, और बुकिश नॉलेज मत दो. आप 1 घंटे में 2 चीजें सिखाओ चलेगा. मैं ये नहीं कह रही 20 चीज सिखा के आओ, लेकिन वो 2 भी कुछ अलग होनी चाहिए ना, कि उनको लगे क्या नाउ आई कैन अप्लाई दिस. एप्लीकेशन मिसिंग है, इसलिए ट्रेनिंग का नाम बदनाम है. वेरी नाइस. तो एक वो एग्जांपल पाब्लो पिकासो का याद आता है कि a lady met her in some market and she requested Picasso, I heard your name, can you make a sketch for me? Yes. और उन्होंने स्केच बना के दिया. हाँ. और उसके बाद में he said that this is $1 billion sketch. Yes. Then she, अरे ये क्या बात कर रहे हो, ये ऐसा हो सकता है क्या? Then that lady went to the market and somebody saw it and said it's a very it's a premium. Yeah, premium one. And then she came to Picasso again. He within few seconds, 30 seconds you made this. He said for this 30 seconds I spent 30 years. Yes. So do not underestimate and devalue the kind of sketch. So training इस तरीके से होती है. आपके पास में जो ट्रेनर आ रहा है उसके पास में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बाद में वो सारा आपको एक्सट्रैक्ट मिल रहा है. तो ये हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी. हमने वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करी. इज देयर एनीथिंग वी आर मिसिंग? सर LinkedIn for founders. Yeah, please go ahead. सर फेस्टिवल पोस्ट मत डालो, आपका जो डेली रूटीन है वो डालो. एंड LinkedIn इज बियॉन्ड फेस्टिवल पोस्ट. आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, मैं नहीं कह रही कॉन्फिडेंशियल मैटर्स डालो, नहीं. आपने कुछ सेलिब्रेशन किया वो डालो, आप कोई टीम ट्रेनिंग करवा रहे हो वो डालो, आपकी टीम मेंबर्स को चांस दो. मैंने देखा है काफी बार. सो व्हेन आई गिव LinkedIn कंसल्टेशन, फाउंडर्स ये कहते हैं कि यार अगर हमने अपने टीम का पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग करते तो कंपनी छोड़ के एंटरप्रेन्योर बन जाएगा. अच्छी बात है ना भाई, आपकी वजह से इंसान आगे बढ़ रहा है. बट वो इनसिक्योरिटी के कारण ना आप टाइम दे पा रहे हो कंटेंट बनाने के लिए, और जो बंदा बनाना चाहता है उसको भी करने देते नहीं हो, तो कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी. And mark my words, sir, people want to build their personal brand. People want to support the company. मैं एक नहीं, मैं आपको 10 कंपनी के नाम दे सकती हूँ जिसको मैं करंटली ट्रेन कर रही हूँ, जिनके एम्प्लॉयज मुझे कहते हैं मैम हमें परमिशन नहीं देंगे बिकॉज हम जूनियर लेवल के, या हमारा डेजिग्नेशन नहीं है. एंड दिस इज वेयर आई फील बैड के बिकॉज ऑफ द डेजिग्नेशन वो इंसान का पोटेंशियल आप मिस कर रहे हो. कि वो इंसान अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बन गया ना, आपकी कंपनी का ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक ब्रांडिंग हो रहा है LinkedIn पे. और आपकी पर्सनल स्टोरीज बताओ. अगेन लाइक आई सेड, पर्सनालिटी वर्सेस पर्स. कितना कमाया, कितना वैल्यूएशन, कितना फंडिंग, ये बात की बात है. आप एज अ पर्सन क्या हो वो दिखाओ लोगों को, और आपकी जर्नी से लोग क्या सीख सकते हैं वो दिखाओ. एंड यू सी you'll have amazing followers, and more than that people will actually want to do business with you. And next 2 years, and I'm saying this on your podcast for the first time, next 2 years LinkedIn में वीडियोस का ग्रोथ होगा. तो अभी से
वीडियोस डालना शुरू करो, आपके पॉडकास्ट के क्लिप्स डालो, आपके सोलो वीडियोस डालो, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करो इन योर ओन लैंग्वेज. परफेक्ट. डजंट मैटर कि सिर्फ इंग्लिश. काफी फाउंडर्स मुझे आके बोलते हैं मानसी वी आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश. नो प्रॉब्लम. हिंदी, गुजराती, हिंदी सबको आता है, हिंदी में डालो ना. हिंदी में डालो, सही है. एंड यू सी पीपल विल लर्न फ्रॉम यू. एंड क्या पता लोग आके बोलेंगे सर आपकी कंपनी में जॉब मिल सकता है, आपके वीडियोस देखते हैं, वी फील कनेक्टेड टू यू. So next 2 years, videos will grow massive on LinkedIn. And most important, please post beyond festival post. कंपनी का और प्रोग्रेस अच्छी डालो. लड़कियों को देख के रिक्वेस्ट भी तो भेज देते हैं उसके ऊपर, और बढ़िया बढ़िया मैसेज भी. आपको भी आते होंगे ऐसे कुछ? अरे सर थोड़ा परेशान हो जाती हूँ होते हो कभी-कभी ना? क्योंकि LinkedIn को डेटिंग ऐप बना के रख दिया है लोगों ने. प्लीज बी रिस्पेक्टफुल इन योर DMs. ये डेटिंग एप्स नहीं है. मैं कोई भी डेटिंग ऐप का नाम लेके बोलते ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहती, बट प्लीज बी रिस्पेक्टफुल. एंड अगर आप किसी को DM कर रहे हो 24 आवर्स रुको. मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटा रुक के फिर ही रिप्लाई आएगा, नहीं, बट गिव इट सम टाइम ना. क्या पता कोई जेन्युइनली बिजी है, कोई फ्लाइट में हो सकता है तभी, कोई मीटिंग में हो सकता है तभी आएगा रिप्लाई. लेकिन 10 बार मेल करना, 10 बार मैसेज करना, लोगों को उसकी बुराई करना कि इसमें एटीट्यूड है, आपको क्या पता कि रियलिटी क्या थी. एंड इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टफुल इन योर DMs, डोंट एक्सपेक्ट द पर्सन टू रिप्लाई टू यू. मैं तो नहीं रिप्लाई करती सर. अगर मुझे लगता है ना कि इंसान फ्लर्ट कर रहा है या इंसान अपने मैनर्स भूल चुका है, मुझे नहीं फर्क पड़ता उसका क्या डेजिग्नेशन है. ऐसे भी आते हैं? यस सर, आते हैं ऐसे. एंड अनएक्सपेक्टेड बड़े बड़े कंपनी से आते हैं. देयर इज नो प्रोफेशनलिज्म. कभी कभी मतलब डेजिग्नेशन जब मैं देखती हूँ एंड जब जिस तरीके से अप्रोच करते हैं, आई जस्ट बिलीव काश मैं स्क्रीनशॉट लेके डालूं कि भाई ये ऐसा है. हर टाइम कोई फ्री नहीं होता सर. अगर कोई आप मैसेज कर रहे हो LinkedIn पे, गिव इट सम टाइम. बट इंस्टेंट रिप्लाई ना आने पे 10 मैसेजेस करना या सामने किसी को बोलना कि यार इसमें तो बहुत एटीट्यूड है. क्या पता कोई ट्रेनिंग सेशन में हूँ या कोई पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ या कोई इवेंट में हूँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों हम उसको बोलते हैं ना कि कैजुअली लेते कि यार यंग है तो वी कैन अप्रोच कैसे भी. बहुत बढ़िया है. एंड देन दे फील कि यार इसको काम नहीं देना है. क्या आपने अप्रोच रिस्पेक्टफुल रखा? नहीं ना. तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट समबडी टू रिप्लाई बैक टू यू? अनएक्सपेक्टेड. यस यस. तो अप्रोच से ना सर बहुत कुछ पता चल जाता है. एंड कहते हैं ना कि वुमेन हैव दैट सिक्स्थ सेंस. समझ में आता है इसके इंटेंशंस क्या है. वो लाखों रुपए में छोड़ दूं चल जाएगा मुझे, बट अगर कुछ कैरेक्टर पे आगे सर वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी. आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट. My God, this is something unusual. I'm hearing for the first time. I'm sure जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट स्पेसिफिकली फीमेल्स, I'm sure उनको भी ऐसे DMs में बहुत परेशानी होती रहेगी सर. I would just say that please don't make LinkedIn a dating app. It's a professional platform. Let's deal professionally, irrespective of genders. Correct. And पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रहो तो बेटर है. अगर आपको इंटरेस्ट भी है कोई इंसान में तो भी आई वुड से दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म एंड दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच. और किसी को काम का लालच देख के पर्सनल लाइफ का इंटरेस्ट दिखाना इज आई थिंक अ वेरी रॉन्ग मैनिपुलेशन. कभी कभी ना इंस्टाग्राम सर बहुत मस्त कोट्स देता है, मतलब एकदम रिलेटेबल मीम्स या कोट्स जब हम कहते हैं दैट रूमर्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ मैन हु कैन नॉट हैव यू एंड अ वुमन हु इज इनसिक्योर ऑफ यू. और मेरे को तब ये बात समझ में आती है कि यार ये बहुत सही बोला, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग भाव टू द पर्सन, तो वो पर्सन आपके बारे में रूमर स्प्रेड करेगा. और जो वुमन इनसिक्योर है वो आपके बारे में और गॉसिप करेगी. और इसलिए मैं डेलिबरेटली मेरे सारे वुमन सेशन में बताती हूँ, वुमन लीडरशिप सेशंस में, प्लीज फोकस ऑन ग्रोथ एंड नॉट गॉसिप. गॉसिप करना आज मजा आ रहा है आपको, बट आपको नहीं पता आप किसी की बदनामी कर रहे हो, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो. एंड पीपल आर इनटू परसेप्शंस. आज सोशल मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट ही है ना, पूरा 100% परसेप्शन पे ही सब बिल्ड हो रहा है, राइट? और लोग विदाउट वैलिडेशन, विदाउट वेरिफिकेशन मान भी जाते कि इंसान ऐसा होगा. एंड लोग आके बोलते हैं कि यार आपसे मिलके तो लगा ही नहीं कि आप ऐसे हो. मैं आपको ये जो आपने बात बताई कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, जो लोग नैरेटिव सेट करते हैं. यस सर, एक लास्ट बात मैं बताना चाहूंगी. यू नो, जब आपने वुमन लीडरशिप की बात की ना, इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ वुमेन, तो जब मैं उनको पूछती हूँ ना कि क्यों लीडरशिप लेवल में नहीं आना है आपको, अपॉर्चुनिटीज है, कंप्लायंस है, यू नीड अ वुमन डायरेक्टर, राइट? कंपनी पेनल्टी पे करती है बट वुमन डायरेक्टर नहीं रखते. तो मुझे वही बोलते हैं कि यार मानसी, हमें डर लगता है कि कुछ छेड़छाड़ी हो गई तो, या यू नो पता नहीं कैसे चीजें होगी, या हमें रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा. अगेन डिफरेंट माइंडसेट. तो ये परसेप्शन की बात है कि पीपल आर क्रिएटिंग फियर. जहाँ पे फॉर्चून हो सकता है बट वहाँ पे वो फियर जो सेल्फ ड्रिवन है वो इंसान को आगे बढ़ने देता नहीं है. एंड दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू सच थिंग्स. डील करना नहीं आता सिचुएशंस के साथ. एंड दिस इज वेयर दे नीड कोचिंग एंड ट्रेनिंग. एंड नॉट बिकॉज वी आर कोचेस, बट आई पर्सनली बिलीव के
एक्सपीरियंसेस ना इंसान को तोड़ता है या बनाता है. तो जब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो, इट्स अ मेंटल ट्रॉमा. आपको सोचने में मजबूर होता है ना कि यार इस लेवल का डायरेक्टर या सीईओ इतना बदतमीज हो सकता है, आपको आइडिया नहीं है. तो रियलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट. जो सोशल मीडिया पे वो सच नहीं है. बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल और सेंसिटिव Yes, चीज़ें हैं yes. ये, है ना. बट अ वुमन नीड टू रियली कम स्ट्रांग विद Yes. और जैसे आपने बोला कि जो सिक्स सेंस होती है, यस, आपको समझ में आ जाती है चीज़ें कि भाई साहब ये किस तरफ ड्रिवन हो रही ड्रिवन हैं, हो रहा है. ना. यस यस. एंड मैं तो ये, जैसे कई बार होता है ना कि मैं तो ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको लग भी रहा है तो एक बार बोल भी दो दैट आई थिंक वी हैव टू ड्रॉ आवर बाउंड्रीज, या ज़्यादा ही कुछ हो रहा है करके, और आई एम नॉट कंफर्टेबल. मैं तो बोल देती हूँ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स. सिंपल. एंड आई थिंक इसलिए जो लोग मैनेजर्स रखते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, हाँ. उनकी बात भी सही है ना. बिकॉज डायरेक्टली अगर अप्रोचेबल हो जाते हो आप तो लोग अपने मर्यादा भूल जाते हैं. तो बेटर टू बी वेरी सेफ देन सॉरी. बट नेवर थिंक दैट आई शुड नॉट कम, आई शुड नॉट करेक्ट, जॉइन यू देयर. शुड. नो मैं इसलिए कहती हूँ कि गेट इनटू ट्रेनिंग कोर्सेज, सीख लो, काबिल बन जाओ, कैपेबिलिटीज अपनी और एनहांस करो एंड डिफरेंशिएट योरसेल्फ. जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेनिंग टेक्निकल या नॉन टेक्निकल. अभी नॉन टेक्निकल इज माई एक्सपर्टीज एंड सोशल मीडिया इज माई एक्सपर्टीज, राइट. सो व्हाट डिफरेंशिएशन आई कैन ब्रिंग टू द बोर्ड. बिकॉज सब लोग सेम करेंगे तो फिर आपका क्या वैल्यू रहेगा बोर्ड में, राइट. तो सोशल मीडिया है, पर्सनल ब्रांडिंग है, कीनोट स्पीकिंग है, ये सारी चीजें जब मैं और अपने आप को सीखती रहती हूँ, डेवलप करती हूँ, इट वर्क्स. Very nice. So, thank you so much, Mansi ji, for Thank you, sharing sir. all those wonderful Thank you insights for having and the me on your thoughts. show. So it है really ना? means a lot. बहुत अच्छी बातें आपने चाणक्य के बारे में बताई और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम और ऐसी पॉडकास्ट करें. Yes, sir. And I believe that this type of conversation will be very helpful for all our Absolutely. audience to Absolutely. learn Thanks and to you. implement. And I would request all the women, those are watching this. Please come in front and understand and connect with Mansi ji, and you can Thank connect you. with me also on our Yes. social media. Yes. Yeah, so thank you so much. Thank you so much. Thank Ji, you so much. Namaste. Thank you so much for watching this podcast. Share your 3 important learning in the comment box, and do not forget to subscribe our channel and share this podcast with your family and loved ones. Thank you so much.